Hello everyone, I am Digvijay Malhotra, lecturer English, Diet Bilaspur. Today we will discuss about the topic assessing speaking and listening. How we can assess speaking and listening skills with the help of storytelling, retelling and interviews. So let us first discuss about the assessing of speaking and listening skills by using interviews, storytelling and retelling. Okay, so when we want to assess someone, we have to acknowledge about that fellow by asking some questions. We can assess somebody. Imagine there are some test items for judging the listening ability. First is by asking questions. Second one is by showing pictures. Third one is by filling missing words. Fourth is by pronouncing words. And fifth is by giving commands. अब how we can assess the child by asking questions. So the teacher will show the pictures and make some questions about that picture and ask the students to tell them the answers of those questions. The teacher also read the story 2 or 3 times, and after that he will ask some questions from the students about that story. So these are the methods to judge the students listening ability. Teacher can also judge the students by pronouncing some words just like bit, sit, kit, put, but, walk, talk, bat, sat, kid, pet, woke, pot, sought. By pronouncing these words, after the pronouncing of these words by the teacher, the students will listen carefully and they will also spoke those words with correct pronunciation. By filling missing words means the teacher gives a passage with some words missing in it. कुछ शब्द जो हैं वो पैसेज में मिसिंग होंगे, टीचर वो उन वर्ड्स को पढ़ेगा और जो मिसिंग होंगे देन ही रीड द पैसेज आउट एंड द स्टूडेंट्स फिल द वर्ड्स इन द ब्लैंक्स. जो खाली जगह छोड़ी होगी वहाँ पे बच्चे उन वर्ड्स को भरेंगे. जैसे सी, उसके बाद हम डैश लगाएंगे, लास्ट में लिख दिया हमने कैट. अब बच्चों से हम पूछेंगे, द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू फिल अप द मिसिंग वर्ड. सो दे विल से दैट CAT cat. By giving commands, the teacher will also give some commands like sit down, stand up, go out. The students carry out the commands if they are able to listen correctly. अगर बच्चे ठीक ढंग से सुनेंगे तो उन कमांड्स को जो है वो कैरी आउट करेंगे और उसके ऊपर जो है वो दे विल फॉलो दोज कमांड्स. नेक्स्ट वन इज असेसिंग ऑफ स्पीकिंग. सो जब हमने बच्चे का स्पीकिंग टेस्ट जो है उसको हमने असेस करना है, तो हाउ वी कैन असेस द स्पीकिंग? बाई ओरल टेस्ट. हम बच्चे को कोई ओरल टेस्ट देंगे बिकॉज इट इज़ वेरी मच यूजफुल टू टेस्ट द स्पीकिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ अ ओरल टेस्ट. सेकेंड वन इज रोल प्ले. द टीचर ऑल्सो विल प्ले द रोल्स एंड he will also ask the students to play the role in certain specified situations. कई ऐसी सिचुएशन है वहाँ टीचर बच्चे को कहेगा कि आप इसके बारे में रोल प्ले करें. ग्रुप डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन. द टीचर ऑल्सो टेक ए टॉपिक
शिक्षक को टॉपिक लेगा, ही देन आस्क द स्टूडेंट्स टू गिव देयर ओपिनियंस अबाउट इट, उसके बारे में वो अपने विचार रखने को कहा। दिस कैन बी डन एट द एडवांस लेवल, बड़ी बड़ी क्लासेस में ये चीज़ चलती हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन, उनकी प्रेजेंटेशन होगी, टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट द देयर आइडियाज़ अबाउट दैट टॉपिक। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड रीटेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग एंड रीटेलिंग मेथड मीन्स उसमें के व्हाट इज स्टोरी टेलिंग, द टीचर विल रीड द स्टोरी, रीड द पैसेज and ask some questions from the students about that stories. So what are the characteristics of that story? First one is provoke curiosity, second one is evoke imagination, third one is build vocabulary, and fourth one is improve listening and oral skills, and fifth is interactive process. ये सारे parts जो हैं, these are the characteristics of storytelling. Means it provoke curiosity and also evoke the students' imagination and interest in language skill. It builds vocabulary, comprehension and story sequencing. और ये जो है it also improves the listening and oral communication skills. It is an interactive and cooperative process. It builds and binds listeners together. It helps the listener to remember. It uses all kinds of language conventions to make the story vivid. It makes listener forget their mystery. ये सारी चीज़ें थी करेक्टरिस्टिक्स में। उसके बाद हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड रीटेलिंग के हैं टू बिल्ड द स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज टू लर्न ऑल लैंग्वेज स्किल्स। अब स्किल्स कौन से हैं? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। दीज आर द 4 skills. To enable students to learn language skills, to enhance their confidence, उनका कॉन्फिडेंस को एनहांस करना, टू इंक्रीज द स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ वोकेबलरी, स्ट्रक्चर एंड ग्रामर, टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टू शेड इन्विटेशन, टू टीच नरेटिव स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिस डिस्क्रिप्शन, टू क्रिएट देम फैसिलिटी, टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन, बच्चों का प्रोनाउंसिएशन, टू क्रिएट फ्लुएंसी, वर्ड्स बोलने की, वाक्य बोलने की, उनमें फ्लुएंसी तैयार करना, टू एनकरेज इंटरेक्शन, और आपस में ताकि वो इंटरेक्शन करें उस चीज़ को उनमें एनकरेज करना। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट एंड असाइनमेंट। सो ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? द टीचर प्रिपेयर्स द आउटलाइन ऑफ द स्टोरीज। जो स्टोरी है उसकी आउटलाइन टीचर टेलिंग तैयार करेगा और उस स्टोरी के बारे में एंड राइट देम सेपरेटली ऑन कलर्ड पेपर, और वो बच्चों को देगा उन कलर्ड पेपर को। द स्टूडेंट्स आर फॉर्म्ड इनटू ग्रुप्स, बच्चों के 5-5 के ग्रुप बनाएगा, फिर उनको वो कलर्ड पेपर जो किसी बॉल में डालेंगे वहाँ से निकालने को कहेगा, और देन ही से टू द स्टूडेंट्स टू ज्वाइन दीज पेपर्स, उन पेपर्स को जोड़ने को कहेगा ताकि एक उसकी एक स्टोरी बन जाए। इसी तरह से तैयार करेगा। और स्टोरीज कौन कौन सी होगी? लाफिंग स्टोरी होगी, इसमें हंसने वाली कहानी होगी, मिस्ट्री स्टोरीज होंगी, रहस्यमयी कहानियाँ होंगी, फेयरली लैंड की स्टोरी होगी, जैसे मैनी मॉन्स अगो इन माई बैकयार्ड ए गुड लुकिंग गर्ल नेम्ड बबली वाज वॉकिंग अलॉन्ग माइंडिंग हर ऑन बिजनेस सडनली शी सा, उसके बाद डैश 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 करेंगे और उनको बोलेंगे कंप्लीट इट। उसके बाद हॉरर स्टोरी होंगी, डरावने वाली कहानी होंगी, रोमांटिक स्टोरी होगी, और मॉरल बॉन्ड जो है वो स्टोरीज इसमें चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यूज़। जो इंटरव्यूज़ हैं उसके साथ जो है हम बच्चे का जो लिसनिंग और जो स्पीकिंग स्किल है उसको हम कैसे असेस करेंगे? तो फर्स्ट वन इज आस्क इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी जो है टीचर वो है बच्चे से इंटरव्यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। वाई एम आई टेस्टिंग, वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो कई बार जैसे कोई टेस्ट होता है, कोई इंटरव्यूज़ होते हैं, तो जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं दे विल आस्क द डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। सेकंड वन इज टेस्टिंग गोल्स। क्यों पूछते हैं कि उनका गोल क्या है, वेदर दे हैव अचीव्ड देयर गोल और नॉट, वेदर दे आर अचीविंग देयर गोल और नॉट, टू जज देयर प्रोफिशिएंसी, टू जज देयर एबिलिटी,
कि उनकी प्रोफिशिएंसी क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, वेदर दे आर एबल टू टेक प्लेसमेंट और नॉट। अगर नहीं है तो उसको क्या करेगा, वो डायग्नोज भी करेगा, उसको डायग्नोज करेगा और उनकी अचीवमेंट लेवल जो है उसको वो टीचर जो है वो चेक करेगा। उसके बाद इंटरव्यूज़ में उसके डिफ़िकल्ट कुछ टास्क जो है उससे पूछेगा, कुछ ऐसे कार्य हैं डिफ़िकल्ट टास्क, उसके बारे में डिस्कस करेगा। और बैक वॉश के बारे में, बैक वॉश मीन्स लहर का एक जो जब किसी किनारे से टकरा कर वापस आती है, दैट इज़ कॉल्ड बैक वॉश। इसमें स्पोकन कम्युनिकेशन होगा टीचर्स के बीच में और बच्चों के बीच में, ग्रुप डिस्कशन होगी बच्चों के बीच में, उसमें टेस्टिंग करेंगे, प्रॉब्लम ऑफ पुअर टेस्टिंग मतलब कम्युनिकेशन टेस्टिंग होगी उसमें बच्चों की। तो ये सारी चीज़ें आएगी इसमें। उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन किस चीज़ का करेंगे, इन सभी पॉइंट्स में इवैल्यूएशन विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, विद द हेल्प ऑफ कॉन्फिडेंस, विद द हेल्प ऑफ समराइजिंग टेक्निक्स, विद द हेल्प ऑफ यूजफुल एक्सप्रेशन, विद द हेल्प ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज एंड टीम वर्क। ये सारे पॉइंट हैं, इनकी हेल्प से जो है हम बच्चे का जो है वो इवैल्यूएशन करेंगे और लास्ट में हम इस गोल पे पहुंच जाएंगे। द गोल ऑफ दिस वाज टू प्रोवाइड ए ब्रीफ टू द करंट रिसर्च इन द एरिया ऑफ स्टोरी टेलिंग, रीटेलिंग एंड लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। बाई इंटरव्यूज they are able to communicate in a better way and faces new challenges. So this was all about this topic of assessing of speaking and listening. So here becomes one question: how will you assess your pupils ability in listening and speaking? Give example in each one. And with the help of interviews, with the help of storytelling and retelling, how we can assess the students, हम students को कैसे assess कर पाएंगे। So it was all about this topic. This topic is meant for second year DLL trainees. So once again, thank you very much.